नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मुबल्लिग इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया अमीनिल जूदि वल अता माइज़्ज़ुनुबि वल खता मंबाइल जूदि वल अता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबल मिअराज। इंतहाई वजहुल एहतराम आलमी मुबल्लिग इस्लाम मखदूम अहले सुन्नत मुहसन अहले सुन्नत शहजादा मुजद्दिद अकबर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सय्यदुस सादात फ़ख्रुस सादात हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहिब आरिफ क़ादरी नौशाही मद्दज़िल्लाहुल आली आस्ताना आलिया ब्रैडफोर्ड शरीफ व आस्ताना आलिया नौशापुर शरीफ व आस्ताना आलिया रनमन शरीफ। इंतहाई मुख्तरम मुकर्रम मुहतशम आशिक़े शेख फिदाए ऊंचाए शेख अलहाज खलीफा पीर अदालत खां साहब नौशाही ज़ीदा मजदहू मेज़बान मुकर्रम इंतहाई कुश्ताए इश्क़े शेख जुनाबे मुहतरम खलीफा मोहम्मद उस्मान साहब नौशाही क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली अहबाब अहले सुन्नत यारान तरीक़त आज आप और मैं आलमी मुबल्लिग इस्लाम के ज़ेर साया सालाना तकरीब सईद हमारी पीर बहन इंतहाई काबिल एहतराम वो शख्सियत हैं मुहतरमा
مرحومہ مغفورہ حمیدہ نشائی صاحبہ قادری نشائی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی مرمت پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنہوں نے پھول جیسا بیٹا، مؤدب بیٹا، قابل فخر بیٹا اس امت مصطفیٰ میں حوالے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ زندگی بھر عبادت کرتی رہی، زندگی بھر اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتی رہی، اللہ تعالیٰ آج انہیں قبر کے اندر لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ اپنی رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ سامعین اکرام، بڑی خوش نصیب گھڑیاں ہیں کہ آپ شیخ الاسلام کے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں میں بس اپنے موضوع پہ وقت کا تعین بھی ہے، میں نے پہلی مرتبہ جسارت کی ہے آپ کے سامنے منبر پر بیٹھنے کی، جبکہ اس سے پہلے میں کبھی مجھے یاد نہیں بیٹھتا، کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہوں۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں محترم مکرم عزت مآب جناب حاجی محمد اشرف صاحب، انتہائی عاشق ہیں، وہ پچھلے دنوں میرے ساتھ مرمر جو جمع تھے بڑا پیار کر رہے تھے میرے ساتھ، آج اتفاق سے پھر ان کے ہاں یہاں ہم اکٹھے ہو گئے۔ حضرات گرامی، بات صرف اتنی ہے کہ یہ کائنات جو ہے اللہ والوں سے آباد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ہو گیا، بند ہو گیا، مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ تھی، نہ کسی نبی کو بھیجا گیا، بلکہ نبوت کے باب کو مکمل کر دیا۔ اب آقا رحمت عرض کرتے ہیں مولا تیرے بعد میرے بعد مجھ سے پہلے ایک نبی آتا، جب وہ جاتا قوم بھٹکنے لگتی، فوراً دوسرا نبی آ جاتا، ایک ہی وقت میں کئی نبی آ جاتے۔ میرے بعد تو وقت مختصر وقت نہیں ہے، طویل وقت ہے، لمبا ٹائم ہے، نہ جانے کب قیامت ہوگی، یہ تو جانتا ہے، یہ تیرے پاس سارے علوم ہیں، اللہ قیامت تک میری امت کیا کرے گی؟ فرمایا محبوب میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، لیکن تیری امت میں وہ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باب ولایت ہم نے کھول دیا ہے، وہ پہلے بھی کھلا تھا لیکن اب اتنا مشاہدہ کر دیا ہے۔ اے محبوب وہ نبی ہیں، ان جیسا تو کوئی نہیں سکتا، لیکن تیری امت میں ایسے افراد پیدا کروں گا، ایسے اشخاص پیدا کروں گا، ایسے لوگ پیدا کروں گا، ایسے احباب پیدا کروں گا، وہ اپنے وہ انبیاء اپنے دور میں محنت کرتے رہے۔ کسی نبی نے 25 بندوں کو کلمہ پڑھایا، کسی نے 100 سے تعداد کو بڑھایا، کسی نے 300 سے تعداد کو بڑھایا، کسی نے 100 کو پورا نہ کیا، لیکن محبوب ہمارا تجھ سے وعدہ ہے، کیونکہ تو امامت کل رکھتا ہے، تو نبوت کل رکھتا ہے، تو اختیار کل رکھتا ہے، تو علم کل رکھتا ہے، تو علم کل رکھتا ہے، تو ادب کل رکھتا ہے، تو حسن کل رکھتا ہے، تو انس کل رکھتا ہے، تو عبادت کل رکھتا ہے، تو مغفرت کل رکھتا ہے، تو رحمت کل رکھتا ہے، تو اختیار کل رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے تجھے عطا کیے ہیں۔ تیری امت میں ایسے احباب پیدا کروں گا کہ ایک ایک کی نظر سے ایک نہیں، 100 نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 90 لاکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، بلغ اسلام۔ سامعین اکرام، میں جو کہنا چاہتا ہوں، وقت تیز دھار کی طرح نظر آ رہا کم ہے، اپنے ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ کریں۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس غنیمت کی گھڑیاں ہیں، ہمیں ایک افسوس ہے جو جملہ میں افسوس سے کہہ کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مضمون پر کہ خالق کائنات نے فرمایا محبوب جو تجھ پر میں نے قرآن اتارا ہے اس کی فکر تجھے نہیں ہے، یہ میرا ذمہ ہے، اتارنے والا بھی میں ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ اے محبوب میں نے تجھے نبی بنایا ہے، تیری نبوت کی حفاظت میں تیرے خدا کا ذمہ ہے، میں نے تجھے جو عزت دی ہے تیری عظمتوں کا رکھوالا بھی میں ہوں۔ قیامت تک جتنی کائنات کم کرنا چاہے نہیں کر سکے گی، کیونکہ تیرے رب نے کہہ دیا۔ جب تیرے رب نے
तुझे बुलंद किया है, जब तेरे रब ने अरफा कर दिया, तेरे रब ने तुझे आला कर दिया, तेरे रब ने तुझे मुसद्दा कर दिया, तेरे रब ने तुझे अजीम कर दिया, तेरे रब ने तुझे करीम कर दिया, तेरे रब ने तुझे रऊफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अब किसी को जरूरत क्या है कि तेरे मर्तबे को कम करे? हाँ, महबूब तेरी उम्मत में वो लोग पैदा करूंगा जिन्हें देखकर अब जो तुझे देखते हैं उन्हें खुदा याद आता है, जो तेरे पास आते हैं उन्हें खुदा याद आता है, जो तेरे साथ बैठते हैं उन्हें खुदा याद आता है, जो तेरी तरफ देखते हैं उन्हें खुदा याद आता है। चेहरा तेरा है, तेरे चेहरे में नजारा तेरे रब का है। अब तेरे दिन को जिंदा रखने के लिए हम तदबीर करने की जरूरत नहीं, हमने फैसले को सादा कर दिया है, जो जितना तेरे करीब होगा वो उतना मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जितना तेरे करीब होगा। वली की परख क्या है? वली कहते किसे हैं? मेरा मजमून हो रहा है, लेकिन तारीफ पर मैंने कहा कि जो जुमला मैंने शुक्रन कह दूं, ये कहना मेरी जिम्मेदारी भी है कि आज आप खुश नसीब हैं, आप कम नसीब नहीं, खुश नसीब हैं, आप बख्तो वाले हैं, आपकी किस्मत बुलंद है आज, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया महबूब जो तेरे करीब होगा वो मेरे करीब होगा, जो तेरा हबीब होगा वो मेरा हबीब होगा, जो तेरा हो जाएगा मैं उसका हो जाऊंगा। वो अपने आप को तेरे हवाले कर दे, जिसने अपने आप को तेरी नजर कर दिया, हम पूरी कायनात का निजाम उसकी नजर कर देंगे। अब उसके इशारे से मुर्दे उठेंगे, उसके इशारे से मुर्दे उठेंगे, उसके इशारे से 12 साल की डूबी कश्ती तर जाएगी, बरात कलमा पड़ जाएगी, उसके इशारे से मुर्दे जलाऊंगा मैं, हालात बनाऊंगा मैं, बारिश बरसाऊंगा मैं। उसके लिए जरूरी है कि वो तेरा हो जाए, वो बोलो बस। ये आखिरी बात कहकर मैं अपने मजमून पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी का सीन है, मस्जिद नबवी का ये प्रेस्टन है ना। मुझे पीर साहब किबला हजूर शेखुल इस्लाम पिछली मरतबा मैंने पंजाबी में तकरीर शुरू की, फरमाते हैं ये प्रेस्टन है, उर्दू में तकरीर करो। तो आज मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो ना बोलो, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो ना बोलो, अगर समझ आती है फिर तो बोलो। मैं क्या कह रहा था? मस्जिद नबवी का सेन है, मस्जिद नबवी का सेन है, गुलामों की भीड़ है, एक मुसाफिर है, मदीना में रहता है, सारा दिन मस्जिद में आपको गुजारता है, कभी सजदे में सर रखता है, कभी गुंबद खजरा पे नजर रखता है, कभी सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहता है, कहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहता है, आका की जालियों को देखकर फिदा होता है, लोगों में बड़ा मुतारफ है, लोगों में बड़ा मशहूर है। अब क्या हुआ? मदीने में बारिश नहीं, मदीना तैयबा की जमीन खुश्क होने लगी, लोग भूख से मरने लगे, अनाज उगता नहीं, फसल फपते नहीं, जानवर प्यासे हैं, लोग प्यासे हैं, पानी की खातिर पानी नहीं, जमीन भस्म हो रही है। अब लोगों ने कहा खुदाया बारिश बरसा, खुदाया बारिश बरसा, खुदाया बारिश बरसा। बारिश नहीं होती, वो सालिक भी दुआ करता है, वो मुसाफिर भी दुआ करता है, जिसे मस्जिद नबवी में लोग देखकर कहते हैं बहुत अजीम है, वो भी दुआ करता है। लेकिन अचानक क्या हुआ? एक शख्स, बाल उसके अटे हुए, लिबास उसका फटा हुआ, हाल उसका बड़ा मारा है, अजीब सी हालत है, देखने में अजीब है, चलने में अजीब है, जिसम में सकत नहीं, बड़ा कमजोर है, नादवा है, कमजोरी में चलता हुआ मस्जिद नबवी में आता है, आकर 2 रकअत नमाज पढ़ता है, हाथों को उठाता है, ऐसे जल्दी जल्दी हाथ उठाकर कहता है, ऐ अल्लाह तुझे कसम बारिश बरसा, ऐ अल्लाह तुझे कसम। ऐसी को जुर्रत कर सकता है? किसी में जुर्रत है जो खुदा को ऐसे कह दे? लेकिन फटे हुए इसके कपड़े हैं, फटा हुआ इसका लिबास है, अटे हुए इसके बाल है, हाल इसका अजीब है, जिसमें इसका पतला है, टांगे बड़ी कमजोर है, पतली पतली उंगलियां हैं, लब उसके थरथराते हैं, हाथ उठाकर कहता है मौला मौला तुझे कसम देता हूँ बारिश बरसा। मस्जिद नबवी के मुसाफिर कहते हैं अभी उसने हाथ गिराए नहीं, अब छा गया मूसलाधार। इतना कहना था, अभी तो मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया भाई। सुभान अल्लाह तो कह दो, जरा प्यार से बोलो। ये बड़े बड़े मुत्तकी
वो नसीबों वाले हैं जिन्हें खुदा ने ताज बख्शा है उमामे का, दाढ़ी जिन्हें बख्शी है। खुदा की तौफीक के बगैर कोई नेकी नहीं कर सकता, लेकिन इश्क का तकाजा है। जब हुजूर की बात है तो जोर से बोलो, जरा इश्क से बोलो, जरा झूम के बोलो। इसका मतलब ये तो नहीं बड़ा मौलवी है जुब्बा कुब्बा पहने वो चुप करके बैठ जाए, उसकी बेइज्जती होती है ऊंचा बोलने से। नहीं, बुजुर्गों को छोड़कर, मशाइख को छोड़कर, ये तो दीवानगी हमारे हिस्से में आई है। सुन्नी है ही दीवाने, किसके दीवाने हैं? मुस्तफा के दीवाने, जुल्फ़े नबी के दीवाने हैं, मदीने की गली के दीवाने हैं, मिश्री की गली के दीवाने हैं, फूलों की कली के दीवाने हैं, रुखसारे मुस्तफा के दीवाने हैं, जमाले मुस्तफा के दीवाने हैं। कोई मुज़फ़्फ़र हुसैन नुशाई हो या जुनाने वाला मेहरबान नुशाई हो, जुनाने शाहिद नुशाई हो, कोई भी हो, ये सब नौशा पाक के दीवाने जो है, इनका ताल्लुक दस्त न दस्त वहां पर सरजमीन नौशा पे नहीं रुकता, बल्कि शहंशाह जीरा बाहे नगीरा के दर पे जाता है, वहां नहीं रुकता। जुनाने बगदादी से चलता हुआ, हसन बसरी से चलता हुआ, मौला अली से बढ़ता हुआ, मदीने के ताजदार के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, बल्ग़ इस्लाम। जो बात कहना चाहता था, जो बात कहना चाहता था, कहा महबूब जो तेरे करीब होगा वो मेरे करीब होगा, जो तेरा हो जाएगा वो बोलो। वैसे नहीं कहना तो मौलवी जुमलों में बात कह गया ना, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। मेरी हसीयत कहा, मेरी जुर्रत कहा, मैं इतनी हसीयत का मालिक नहीं, ये मैं अपनी बात नहीं करता, कायनात के रब की बात करता हूँ, जिसका मकान है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कायनात उसी के हाथ में है और हर चीज पे कादिर है। और कादिर क्या कहता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। क्या तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? ये बात मुझसे हो रही है, आपसे हो रही है, क़यामत तक आने वाले मोमेंट से रब कह रहा है, क्या तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? हाँ चाहती है मौला। फरमाया फिर टकरे क्यों खा रहा है, भटक क्यों रहा है? मैं तेरा रब होकर राज तुझे बताऊं या न बता? फरमाया तू चाहता है तेरा रब तुझसे मोहब्बत करे तो सुन, तू मेरे मोहब्बत महबूब से मोहब्बत कर, तू मेरे महबूब का हो जा, मैं तेरा। या अल्लाह ये तेरा हो गया, या अल्लाह ये तेरा हो गया। इसने घर छोड़ा तेरे लिए, बाप छोड़ा तेरे लिए, मुल्क छोड़ा तेरे लिए, सारे रिश्ते तोड़े तेरे लिए। रिश्तों को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, अजीजों को छोड़कर, यारों को छोड़कर, प्यारों को छोड़कर, ये तैयारे गैर में आया तेरे लिए। घर को छोड़ा तेरे लिए, या दिन रात कलमा पढ़ाया तेरे लिए, मस्जिदों को बनाया तेरे लिए, जिंदगी का हर सांस तेरे लिए वक़्फ़ किया। अल्लाह बता इनका मर्तबा क्या है? तो यही दो आवाज आती है, एक ज़माना सोबते बानिया बेहतर सनसाला साथ बेरिया। तेरी जिंदगी भर की इबादत सालों से ज्यादा एक नजर तकना है, तकना। किसको तकना? किसको? किसको? जो उसका हो जाए। जो उसके हुए थे वो तो हजारों नहीं लाखों है, उनमें से एक का नाम लेकर अपने मजमून की तरफ बढ़ता हूँ। जिस्म छोटा है, मुझे हमेशा टाइम भी छोटा मिलता है। कभी मुझे टाइम पाबंदियों से बाहर निकल कर मिले तो खुदा की कसम पर बोलता जाऊं, इश्क़ मुस्तफा की मोती रोलता जाऊं और आपके कानों में मोहब्बत के गीत गूंजता जाऊं। हाँ, कहा ये वो है जो मेरे उनमें से लाखों में से एक, वो हजारों में एक, वो लाखों में एक। वो कौन है? वो बगदाद से खानदान उठा है, ये बगदाद की वादी से उठा है, ये नूर की वादी से उठा है, वादी तूर से उठा है। यहाँ पर वलायत नाज करती है, पूरी कायनात में इस जैसा आसमानी वलायत पे सितारा कोई नहीं, नहीं सितारा नहीं, चांद कोई नहीं, नैयर कोई नहीं। वो शहंशाह जिला की दस्ती से, धरती से, बस्ती से खानदान उठा, चलता हुआ, बीवी से गुजरता हुआ, अफगानिस्तान से निकलता हुआ, पाकिस्तान के पंजाब सीने में कलबे पाकिस्तान में आया, वहां पे डेरा लगाया, वहां पे जिक्र सुनाया, अल्लाह अल्लाह का विर्द सुनाया, लोगों को मुखातब फरमाया। जब जिक्र सुनाया अब मुस्तैजा फिजा आया।
मेरे घर को आ रहा है, मैं तुझे वो बेटा दूंगा, तुझे वो बेटा दूंगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, और जिसका काम कह दो, जो हजूर का काम करे, हजूर के ताबे हो जाए, वो हजूर का काम है ना, उसका नाम भी मेरे नाम पर, उसका काम भी मेरे काम पर, वो इस कायनात में नूर के उजाले कर देगा। वो है मुजद्दिद इस्लाम हजरत नौशागंज बख्श कादरी। मैंने जो हमारी बहन मोहतरमा मरहुमा हमीदा नुशाई साहबा है ना, उनकी निस्बत की बात करने के लिए मजमून सराय इधर मेरा इस तरफ चला गया। नुशाई है कौन? हजरत नौशागंज बख्श वो मर्द कलंदर है, वो मर्द खास है, वो वक्त के कलंदर है, वो वक्त के सिकंदर है, वो अजीम हस्ती है, वो खुदा के करीब है, वो मुस्तफा के करीब है। जब से मुस्तफा के करीब है वो मेरे खुदा के करीब है। अब खुदा की कसम वलायत उनके दर से बढ़ती है और मोर वलायत की उनके शेख के दर से लगती है। वो हजरत मुजद्दिद इस्लाम जिनकी मसाई से 2 लाख से जायद हिंदुओं ने अपने जंजू तोड़कर, करपाले तोड़कर, हिंदुओं ने जंजू तोड़कर राम राम छोड़कर रहीम रहीम के वजीफे, रहमान के वजीफे किए। उनके लाल आपके सामने है। इतना तारीफ, ये बात कहने के लिए मुझे कितना कुछ कहना पड़ा। आप तो कह दो सुभान अल्लाह। जिस बंदे ने एक बंदे को राह रास्त पे लाया वो जहन्नम में नहीं जा सकता। तो जिस लाखों, ये तो वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, डाकुओं की बात नहीं करता, कातिलों की बात नहीं करता, कज़्ज़ाकों की बात नहीं करता, फासिकों की बात नहीं करता, फाजिरों की बात नहीं करता। वो तो करोड़ों में है जो नौशा पाक के दर पर तायब हुए, आपको देख कर तायब हुए, आपकी सोबत में तायब हुए, आपकी गली में तायब हुए, आपकी मस्जिद में तायब हुए, आपके माहौल में तायब हुए। वो तो करोड़ों से भी बढ़कर है। उनके शहजादे हैं, उनके दिल बंद हैं, उनके नूर नजर हैं, उनके निगाहों का नूर है जो आपके सामने मौजूद है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। बस यहाँ पर एक उक्दा बयान करके इजाजत चाहता हूँ। पिछले एक मैंने प्रोग्राम में अपने अर्ज किया था, तो आज उसी बात को नामुकम्मल रह गई थी, उसे मुकम्मल करना चाहता हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत आम फहम है, इसका तर्जुमा मुश्किल नहीं, समझ आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना। आम लोगों का तसव्वुर यह है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, बंदा मर गया। आम तसव्वुर यह बंदा बोलो बोलो, उन कसम लगे जरा ना बोले, दूसरे के छड़ दो कसम लगे जरा ना बोले, और बोलो ना मर गया, बंदा मर गया। हम तसव्वुर किया, हमारे लोग कहते बंदा मर गया। अरे कब मरा है? कहते हैं कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। मैंने कहा जायका देखना, जायका कह रहा है, सुभान अल्लाह, खुदा तो जायका कह रहा है ना। ये मोहम्मद की बात नहीं करता, आशिक अली की बात नहीं करता, मैं किसे मौलवी पीर फकीर की बात सिर्फ नहीं करता, वो बात करता हूँ जो खुदा करता है। ज़ाइक़ातुल मौत कि मौत का जायका चखना है। तो जायका क्या होता है? आप रोज रोटी नहीं खाते, खाते हो, जायका आता है, बोलो। ऑरेंज पिए तो जायका आता है, मैंगो का जूस पिए तो जायका आता है। तो कितनी देर रहता है? जब तक उसके और ऊपर चीज ना पी जाए उसका जायका बरकरार, जब तक कुल्ली ना की जाए जायका बरकरार, जब तक ब्रश ना किया जाए जायका बरकरार। इसलिए जायका आता है, एक मर्तबा नहीं आता, हर बंदे की जुबान पर हर रोज कई बार आता है और चला जाता है। जायका क्या है जो बंदे को खत्म करे? कहते बंदा मर गया। अरबी कुरान की रूह को देख, खुदा तो कह रहा है कि आपसी रूह मौत का जायका चखेगी। तो जायका क्या है? अरे भाई जायका ये है कि जायका उसने चखा और क्या हुआ? एक जहान से कदम उठाया, दूसरे में रख दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज पता क्या कहते हैं? मैं अरबी की इबारत मेरे ज़हन में अब चूंकि नहीं है, आप फरमाते हैं जो पैदा हो गया ना वो मरेगा नहीं, वो अपने अंदाज बदलेगा, जहान बदलेगा। जब माँ के पेट में तो था तो क्या था? कहते जी पैदा हुआ, जिंदगी शुरू हो गई। मैंने कहा क्या कहते हो? जो माँ के पेट में था, 5 माह का बच्चा था, रूह उसके जिस्म में डाल दी,
وہ خوراک کھاتا تھا, وہ زندہ تھا, موجود تھا, کروٹیں بدلتا تھا, ماں کو پتا تھا پیٹ میں بچہ ہے, دعائیں پڑھ رہی تھی, آثار نظر آ رہے تھے, وہ زندہ تھا. اب پیدا ہو کے زندہ نہیں ہوا, پیدا ہو کے اس نے جہان بدلا ہے. ماں کے پیٹ سے نکلا, جہان بدلا. جب پیٹ سے نکلا تو کیا ہوا؟ وہ رویا, اس کی چیخ نکلی, گھر والے کہتے مبارک, کیا ہوا, بچہ آیا, کیسے پتا چلا؟ کہتے چیخ کی آواز نہیں سنتا, بچہ ہوا, رونے لگا. رہا بھائی تو ہنس رہا ہے, وہ رو رہا ہے. وقت ہے آپ کے پاس, ہے وقت سننے کا وقت ہے, سبحان اللہ کہنے کی جسارت کرے. ارے وہ کہتے ہیں جب پیدا ہوا تو وہ چیخ کر رو رہا تھا. کیوں رو رہا تھا؟ اس نے سمجھا کہ میں تو زندہ تھا, میری دنیا تھی, میرا گھر تھا, میرا محل تھا, میرا کیسر تھا, میری صحرائے تھی, میرا ایک جہان تھا جہاں میں اکیلا تھا. ادھر میری مرضی کا دن تھا, مرضی کی رات تھی, صبح میری تھی, شام میری تھی, میں زندہ تھا. پتہ نہیں کیوں میری زندگی سے, میرے جہان سے مجھے نکال رہے ہیں. لیکن وہ رویا جب اس نے دیکھا کہ ماں کے شکم میں, ماں کے وہاں ماں نہیں تھی, باپ نہیں تھا, بھیا نہیں تھا, بہن نہیں تھی, یار نہیں تھے, ہوائیں نہیں تھی, فضائیں نہیں تھی, کائنات کا حسن نہیں تھا. وہ چپ ہو گیا, خوش ہو گیا. اب کسی نے کہا کہ واپس جانا ہے, کہتے اب نہیں رہوں گا کیونکہ میں نے سمجھا جہان وہ تھا. اب پتا چلا ہے وہ جہان نہیں تھا, وہ قید خانہ تھا, وہ حبس تھا, وہاں تنگی تھی. اور جہان تو یہ ہے جب یہاں آیا. اب رونے کی ضرورت نہیں ہے, اب رونے کی ضرورت نہیں. بس اتنی بات اور کرنی ہے, پہلے والی کو چھوڑ کر. وہ میں نے کہہ دی موضوع کے مطابق اتنی بات کرنی, جو میں رہ گئی تھی ادھر اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جب ماں کے شکم میں تھا, کائنات میں آ کے رویا. جب کائنات سے جانے کا وقت آیا, سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ کہہ دو. اللہ کو پتا ہے نا کتنی بار کہہ کر اس کے بندوں سے سبحان اللہ کہلوانی پڑتی ہے. یہ تو وہ بھی سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, بذات صدور ہے, علی کل شیء قدیر, اس کا مرتبہ مقام ہے. وہ بھی تو چاہتا ہے نا, ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر سبحان اللہ کہے, مجھے دیکھ کر اچھا کہے. تو یہ جو عارضی ہے, اس باپ کا رشتہ بڑا نہیں, رشتہ بڑا تو خدا کا ہے. باپ نے پیدا کیا ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ یہ پاؤں تیرا ہے, یہ ہاتھ تیرا ہے, یہ نظر تیری ہے, یہ کان تیرا ہے. پورے بدن میں بتا بھیا تیرا کیا ہے؟ یہ ہاتھ تیرے رب نے دیے, پاؤں تیرے رب نے دیے, دل تیرے رب نے دیا, دماغ تیرے رب نے دیا, سوچ تیرے رب نے دی, فہم تیرے رب نے دیا, ادراک بھی تیرے رب نے دیا. اب جب وہ دنیا پہ آیا, اب اسے کوئی کہے کہ واپس جائے گا, بولو جائے گا؟ نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. اب لفظ اختتام کی جانب جملے سمیٹ رہا ہوں. اب مرنے والوں کی دو باتیں ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ذائقہ دو طرح کا ہوتا ہے, مضمون بکھر جائے گا. ایک جملے میں کہتا ہوں جو خدا کا نہیں ہوتا, جو مصطفیٰ کا نہیں ہوتا, جو اللہ والوں سے سنگ نہیں بناتا, جو اللہ والوں سے اپنی نسبت نہیں قائم کرتا, وہ اللہ کے محبوب تک نہیں پہنچتا. جو اللہ کے محبوب تک نہ پہنچے وہ خدا تک نہیں پہنچتا. کیونکہ شیطان کا چہرہ اٹھا کے دیکھ لو, پہلا پارہ پڑھ کے دیکھ لو, جہاں بھی شیطان کا تبصرہ ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لو. وہ تو خدا کو مانتا تھا, اس کی توحید کو مانتا تھا, سجدے اسے کرتا تھا, رکوع بھی کرتا تھا, سجود بھی کرتا تھا, تلاوت بھی کرتا تھا, عبادت بھی کرتا تھا. بڑی کائنات میں سب سے بڑھ کر اس نے سجدہ رہ دیا کی اختلاف کیا ہوا؟ فرمایا تسجد آدم, سجدہ کرو آدم کو. اس نے کہا خدایا اس کو نہیں کرتا. کیوں؟ فرمایا تجھے کرتا ہوں. اگر بات میری کمزور ہے تو نہ کرو, سچی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. ایک مولوی ہوں نا بڑا سارا پھٹیا, ممبر تے پورا ہی نہ ہوندا, تے لال صبح دا رنگ ہوندا, اے دروازے پھسیا ہوندا, تسی دو بندے دھکا لا کے کھچ دے, دو پچھوں اگا سٹ دے, تے انہوں نے ویکھ کے تو سبحان اللہ, ایڈا بڑا مولوی مک مارے گا تو کو پا دے گا. اے پتہ پتلی باڈی دا مولوی ترلے ہی کر سکدا, اور تے گل نہیں کر سکدا. کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, بلغ اسلام.
एक जुमला पूरे खुलासे का, पूरी तकरीर का, किताब का जुमला दे रहा हूं। हजरत हाफिज शिराज ने भी कहा है, वो भी तो यही कहते हैं, अरे आने वाले जब तू आया था ना, तू रो रहा था, घर वाले हंस रहे थे, बच्चा रोता है, घर वाले मुस्कुराते हैं, खुशियां मनाते हैं। फरमाया जब तू आया था रोया, अगर तू जाते भी और तू रोया तो तू नाकाम हो गया। कहा फिर क्या बताएं आप, क्या बताएं, अल्लाह वाले है ना, आप बताओ। कहते मजा तब है, कामयाबी इसी में है, जब तू आया था तू रो रहा था, अब तू जाए तू हंस रहा हो, जमाना रो रहा। अब यहाँ भी बात लंबी हो जाएगी, एक जुमले की नजर करना चाहता हूं। तू हंस रहा हो, हंसता कौन है? जिसे खुशी हो, जिसे दुख में हंसा जाता है, दुख में मुस्कुराया जाता है। गम जब आंसू निकल रहे हो तो वहां खुशी होती है। हजरत बिलाल बिस्तर मरद पर तड़प रहे हैं, तड़पते हैं, दर्दें उठती है, दर्द बढ़ता है, जिगर फटता है, नजर का हालत अजीब है। अचानक से उठे और अपनी हाथों को फिजा में बुलंद किया, रक्स करने लगे, मरहबा मरहबा मरहबा। घर वालों ने कहा अरे तुझे को क्या हो गया? ऐ बिलाल, ऐ नबी की नजर के मतवाले, ऐ शम्मा रिसालत के परवाने, ऐ उसने नबी के दीवाने, महबूब के मुअज्जन, मस्जिद नबवी की बहार, मेरे आका के कदमों की बहार, मेरे आका के कदमों पे लिपटने वाले, मेरे आका के कदमों के जर्रों को चूमने वाले बिलाल, अभी तो तू तड़प रहा था, अब क्या हुआ? कहते चुप हो जा, तुझे पता नहीं महबूब से मिलने का वक्त आ गया है। क्योंकि मौत के बाद यार को यार से मिलाया जाता है। ये बात क्या, बस यहाँ पर मैं 1 घंटा तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन जब बुरे बंदे के पास मौत आती है तो क्या होता है? इतना भयानक चेहरा होता है आने वाले का कि मरने वाले की चीखें निकलती है। वो मौत मांगता है, लगता है मौत उससे कोसों मील दूर है, उसे इतनी तकलीफ होती, कहते हैं मर जाऊं, जान छूटे। लेकिन जब अल्लाह वाले बंदा मोमिन के पास आता है मलकुल मौत, क्या होता है? बस ये जुमला जब आता है, इतना हसीन चेहरा होता है, रब कहता मलकुल मौत, जी अल्लाह फरमाया जाओ, वो मेरा दोस्त है, जिसके पास तू जा रहा है मेरा दोस्त है, अकेले मत जा। ये हदीस ना निकले तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं मुजरिम, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हदीस पेश कर सकता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तन्हा, अल्लाह फरमाते तन्हा मत जा, 500 फरिश्ते साथ लेकर जा, हाथों में फलों के। मैंने बहुत गौर किया कि फूलों की होनी चाहिए, गुलदस्ता तो फूल का होता है, लेकिन वहां लिखा है हाथों में फलों के गुलदस्ते ले जाओ, और जड़े उनके हाथों में है जिससे जाफरान की खुशबुएं बिखरती है, बहुत मुअत्तर है। उसके सामने आकर कहते हैं सलाम अलैकुम। फिर क्या कहते हैं? मरने वाले को कहते हैं मोमिन बंदा है, बंदा मोमिन, तुझे मेरा सलाम हो और मेरा रब भी तुझे सलाम कहता है। बस मैं आपके ईमान की मेराज के लिए 2 जुमले कहने हैं, वक्त नहीं, क्योंकि ट्रे चल रहे हैं, बर्तन चल रहे हैं, मुझे घंटी बज रही है, टाइम इख्तिताम की तरफ है। कहा कि 500 फरिश्तों की जरूरत क्या है? कहा लोग तो जुलूस के लिए पूछते हैं, जुलूस कहाँ जायज है? अरे मैं नबी के गुलाम की बात करता हूँ, जिसने नबी को देखा नहीं, सदियां बाद हुआ है, पर ऐसा हुआ है कि मुस्तफा का हो गया। अब उसका हाल क्या है? 500 फरिश्ता क्यों आया है? रब फरमाते हैं इसकी रूह को लेने के लिए लेके जाओ, ताकि इसकी रूह का मलकुल मौत तू अकेला नहीं, 500 फरिश्ता इस्तकबाल करे और उस जुलूस में मेरे पास लेकर आओ। मैं वहां पहुंच गया जो कहना चाहता था। आयत के कुछ तर्जुमे बाकी मेरे जुम्मे हैं, फिर कभी सही, लेकिन जब वो बारगाह रब्बुल आलमीन पहुंचता है, ये बात मैंने वहां नहीं की, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। जब वो वहां पहुंचा, मकाम इल्लियीन पे पहुंचा, जब वो फरिश्ते 500 पहुंचे, मलकुल मौत भी वहां पहुंचा, रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाते ही सजदा रेज़ हो गए, सजदा रेज़ हो गए। अब खुदा ने खुद कहा, वो सजदा रेज़ होगा, सजदे से उठे, अब खुदा ने कहा है मेरे मुकर्रबीन मलाइका, अब इस रूह को भी अपने साथ सजदे में ले जाओ। अब वो रूह बारगाह रब्बुल आलमीन में सजदा रेज़ होगी। जब उठी रब ने कहा मलकुल मौत, जी अल्लाह, फरमाया ये मेरा बंदा है खास, इसका नाम मेरे दोस्तों में लिख लो, अब क़यामत के दिन इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ये अल्फाज है, अल्फाज
आगे क्या है सुनिए। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अब मेरे दोस्त की रूह को, इसकी रूह को, इसकी रूह को, इसकी रूह को अब वापस इसके मुकद्दस जिस्म में पलटा दो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरा नहीं जहान बदला है। जुमले मुकम्मल हो गए, लेकिन जो कहना चाहता हूं ना वो बड़ा हसास है, ठंडे दिल से सुनने वाला नहीं है, तड़प के सुनने वाला है। मैंने कहा आप भी पाकिस्तान से आए हैं, हमारे पाकिस्तान का प्रोटोकॉल ये है कि पहले छोटे को मिलते हैं फिर बड़े को मिलते हैं, सदर को बाद में मिलते हैं, पहले वजीर आजम को मिलते हैं, वजीर आजम को बाद में मिलते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर सूबे के वजीर आला को मिलते हैं, पहले छोटे से मुलाकात होती है फिर बड़े से मुलाकात होती है। अल्लाह समझ नहीं है, रब ने फरमाया ये बंदा मेरा दोस्त है, ये बंदा मोमिन है, इसको दो हमने नेमतें देनी है। या अल्लाह किस तरह की नेमतें हैं? फरमाया इसकी रूह को लेकर मेरे पास आ जाओ, इसलिए कि मैंने अपना दीदार भी देना है और मैंने अपने मुस्तफा का दीदार भी करवाना है। तो या अल्लाह अगर ये दीदार था तो चाहिए था पहले मुस्तफा की चौखट पे जाते फिर तेरे पास आते। हिफ्ज़े बरादत का यही है, पहले छोटे के पास फिर बड़े के पास, तुझसे बड़ा कोई नहीं। रब ने फरमाया दस्तूर यही है, पर हमारे अंदाज निराले हैं। हम काबे में जब हज के लिए बुलाते हैं पहले काबे में बुलाते हैं, हज के लिए बुलाते हैं, कहते हैं सफा करो, मरवा करो, जमजम पियो, तवाफ करो, नजर से काबे को देखकर तुम्हारे गुनाह धुल जाए, तुम्हारे ऐब धुल जाए, तुम्हारी सही धुल जाए, ताकि हज करके साफ हो जाओ, इस काबिल हो जाओ कि मेरे महबूब का रोजा देख सको। आज हमने इसलिए इस रूह को अपने पास बुलाया, हो सकता है दुनिया की कोई धूल इस पर पड़ी हो, हमारे दीदार से दूर हो जाए, ताकि जब कब्र में जाए मेरा यार कब्र में आए, ये पाक होके मेरे महबूब को देख सको। हज़रात गिरामी, मोहतरमा, मरहुमा, मगफूरा हमीदा यूसुफ नुशाई साहबा की अजमत को मेरा सलाम, अजमत को मेरा, अजमत को मेरा सलाम। एक जुमला कह दूं, एक जुमला जाते जाते कह दूं। एक भाई साहब थी, उसे आदत थी जब कोई औखा मुश्किल वक्त आता ना डरती, यानी बिजली कड़की है तो वह डर गया से करती, या रसूल अल्लाह, खौफनाक आवाज आई, या रसूल अल्लाह, मुंह मदीने की तरफ करते कहती या रसूल अल्लाह, क्या कहती? या रसूल अल्लाह। अब खौफनाक बदली ने आवाज दी बादल करके, दिल लर्जा, कहती है या रसूल अल्लाह, मुंह मदीने की तरफ करके किया। जब वो मर गई काफी देर के बाद अपनी औलाद को मिली, बेटे ने कहा अम्मा सुना कब्र में कैसा हाल है? कहती ठीक हूँ। कहती अम्मा कब्र में मुनकर नहीं नकीर नहीं आए थे? कहने लगे आए थे। तो अम्मा फिर क्या हुआ? कहने लगे बेटा आपको पता है ना जब कोई मुश्किल वक्त आता है, दुनिया में मेरी आदत है मैं मुंह मदीने की तरफ करके आंखों पे हाथ रख के या रसूल अल्लाह कहती थी। जब मैं कब्र में पहुंची दो नकीर आए, बड़े खौफनाक उनके चेहरे थे। जब मैंने उन्हें देखा मैं घबरा गई, मैंने मुंह मदीने की तरफ किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह। जब मेरी आंख खुली खुदा की कसम उस दिन से लेकर वो आए ही नहीं है। ये हमारी बहन है ना मोहतरमा मरहूमा हमीदा यूसुफ नुशाई, ये जब मुश्किल पड़ती थी ये गौसे जीलान की तरफ मुंह करती थी, ये हजरत नौशा मुजद्दिद इस्लाम की तरफ देखती थी, ये मेरे पीर कामिल शेखुल इस्लाम के कदमों के बताए हुए असूलों पे चलती थी। हमारा यकीन है वो जन्नती है, वो जन्नती है। अल्लाह ताला हजरत खलीफा अलहाज गुलाम यासीन साहब कुरैशी जो इस शहर के धरती पर उनके कदम लगे हैं, जिन्होंने एक जमात तैयार की है, कोई मुजफ्फर दिया है मेरे शेखुल इस्लाम को, कोई मेहरबान दिया है मेरे शेखुल इस्लाम को, कोई शाहिद दिया है मेरे शेखुल इस्लाम को, कोई इखलाक से सवार के कदमों में डाला है शेखुल इस्लाम के। मैं कहता हूँ वो जीत गए। लोग कहते हैं मर गए, कैसे मरे हैं? 1 साल 7 महीने कब्र में रहे। कब्र बदलने का वक्त आया, कहा कि पिंडी में ले चले कश्मीर की घाटियों से निकाल कर। जब 1 साल 7 माह कुछ दिनों के बाद कब्र को खोला, खुदा की कसम उनके कफन पर एक छींटा भी नहीं था, उनके चेहरे पर उनकी दाढ़ी पर एक मलाल नहीं था। उसी तरह
میرے ان کا چہرہ مسکرا رہا تھا. میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, مرتا نہیں ہے موت کا ذائقہ.